हमेशा खुश रहो बिटिया। आई एम JV Dr. Anamika Aherwal, Associate Professor in the Department of Science and Technology at Jayoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. Today I am going to take the lecture on the topic test planning, design and development. As I have already discussed about testing, testing is one of the phase of software development life cycle. Okay, and it is of course very important phase because it all depends ki how your software fulfills your requirement, right? Or you how your software which you have developed meets the requirement, actually the meets the user requirement, right? So in the text planning, first of all, it is, you can say, this stage represents the need to review long lead time test planning activities, right? In this phase, there is a team which identify the test procedures, creation standards, and the guidelines. And in the guidelines, what are the things like hardware, software, network required to support the environment, okay, and test data requirement, preliminary test schedule, like performance measure requirements, a procedure to control test configuration and environment, as well as defect tracking procedures and associated tracking tools, right? So you can say a test plan consists of the results of each preliminary phase of the structured test methodology. Okay, the so in the planning, what you will do there is some task which you would like to do that. First of all, you analyze, okay fine, then plan, then schedule. Okay, on the basis of planning and schedule, you start your work, right? So planning is most important thing. So this test environment setup is a part of test planning, and it represents the needs to plan, track and manage test environment setup activities where material procurements may have long lead times, right? जैसे कि हम देखेंगे, सबसे पहले हमें प्लानिंग करने की आवश्यकता होती है। जैसे कोई से भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, उसमें हमारा क्या होता है कि हम वहाँ देखेंगे कि हमने यूज़र की नीड को पूरी तरह से फुलफिल किया है या नहीं किया है, राइट? तो फुलफिल करना का मीन्स जो उसने बनवाना चाहा था, क्या हमने उसे वही बना के दिया है तो या नहीं बना के, या वो कुछ और चीज़ चाहता है, या जो हम उसको इनपुट दे रहे थे हमें वैसी चीज़ मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो हमें जब हम टेस्टिंग कर रहे होते मीन्स हमारी कोई चीज़ बन के तैयार हो जाती है, उस दौरान भी हमें टेस्टिंग करने की ज़रूरत होती है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था कि आपका एग्ज़ाम्स होता है आपके यूनिवर्सिटी में, स्कूल्स में, तो टेस्ट मिड टर्म एग्ज़ाम्स, एंड टर्म एग्ज़ाम्स क्यों रखे जाते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न कि आप अपने आप में जान पाएँ कि आप उस सब्जेक्ट को कितना समझ पाए हैं। अगर आप समझ पाए होंगे देन ओनली यू कैन गिव द आंसर्स ऑफ दोज क्वेश्चंस, राइट? So the testing part is also important. Now if we are talking about the design, test design means the test design, there is a component address that needs to define the number of tests, okay, to be performed, the ways that testing will be approached, path functions and the test conditions that needs to be exercised. Means this test design standards needs to be defined as follows. लाइक इसमें हमने क्या कहा कि टेस्ट डिज़ाइन एक ऐसा कंपोनेंट जिसमें हम जितनी नंबर ऑफ़ टाइम्स टेस्ट परफॉर्म करते हैं वो हम सारी चीज़ों को उसमें इंक्लूड करते हैं कि ठीक है इसको इस तरह से किया गया, इसको वैसे किया गया, ठीक है। और एक इफ़ेक्टिव जो टेस्ट प्रोग्राम होता है वो क्या होता है, उसमें इन ऑटोमेशन, जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ऑटोमेशन होता है उसमें छोटी मिनी डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स होती हैं, और उसको कंप्लीट किस स्ट्रैटेजी के थ्रू किया गया है, क्या उनकी गोल प्लानिंग थी, क्या उनकी टेस्ट रिक्वायरमेंट डेफिनेशंस उन्होंने ली थी, एनालिसिस पार्ट, डिज़ाइनिंग एंड कोडिंग, ये सारी चीज़ें हमारे इफ़ेक्टिव प्रोग्राम के अंतर्गत आ जाती हैं, ठीक है। अब हम इसमें क्या, इसके बाद हम क्या देखेंगे कि आफ्टर दिस टेस्ट रिक्वायरमेंट हैव बीन डिराइव्ड यूजिंग डिस्क्राइब टेक्निक्स लाइक टेस्ट प्रोसीजर डिज़ाइन कैन बिगिन। उसके बाद हम प्रोसीजर्स को
डिफाइन करते हैं, लाइक लॉजिकल ग्रुप्स होते हैं, इसमें टेस्ट प्रोसीजर्स होते हैं, एंड नीमिंग कन्वेंशन, राइट। सो इसमें हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। अब अगर हम बात करते हैं कि ये टेस्ट प्रोसीजर डिज़ाइन प्रोसेस की, तो सबसे पहले क्या होता है, टेस्ट आर्किटेक्चर रिव्यू किया जाता है। उसमें क्या क्या किसी भी चीज़ को करते समय, बनाते समय, स्टार्ट करते समय एक आर्किटेक्चर बना लेते हैं। जैसे कि हम घर बनाते हैं, उसका आर्किटेक्चर पहले से बना के रखते हैं ना, तो वैसे ही यहाँ पे भी होता है। तो इसमें क्या करते हैं, द टेस्ट टीम reviews the test architecture in order to identify the test techniques that apply. And the second is the test procedure definition, that is development level. इसमें क्या होता है कि जो टेस्ट प्रोसीजर है वो क्या डिफाइन करता है, कंस्ट्रक्टेड एट द डेवलपमेंट टेस्ट लेवल, means identifying the test procedures series that applies for the various design components and test techniques. नेक्स्ट क्या आ गया, टेस्ट प्रोसीजर डिफाइन सिस्टम लेवल। अभी हमने क्या देखा था कि डेवलपमेंट लेवल पे था किसको, टेस्ट प्रोसीजर की डेफिनेशन देना। अब ये क्या, सिस्टम लेवल पे हम उसकी डेफिनेशन देंगे। तो उसमें क्या होता है कि टेस्ट प्रोसीजर डेफिनेशन इज कंस्ट्रक्टेड एट द सिस्टम टेस्ट लेवल, identifying the test procedure series that applies for the various test techniques. और नेक्स्ट उसमें क्या है, टेस्ट प्रोसीजर डिज़ाइन स्टैंडर्ड्स, कुछ स्टैंडर्ड्स भी होंगे जिसको हमें फॉलो करना पड़ेगा उस डिज़ाइन के लिए, ठीक है। जैसे हर एग्जाम का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है कि आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, इतने मार्क्स के आएंगे, हर यूनिट से एक क्वेश्चन आएगा, या किसी भी यूनिट से भी कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ पैटर्न होगा, यू हैव टू फॉलो दैट पैटर्न। सो हम इसमें क्या देखेंगे, डिज़ाइन स्टैंडर्ड्स एंड आर अडेप्टेड and a unique naming convention is adopted that distinguishes the test procedures on the project from test procedures developed in the past on the or on the other projects. और नेक्स्ट क्या हो गया, जैसे मैनुअल वर्सेस ऑटोमेटेड टेस्ट हो गया। इसमें हम क्या देखेंगे कि test procedures will be depicted as being either performed manually or as part of an automated test, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें अगर हम देखते हैं, द टेस्ट प्रोसीजर फ्लैग्ड एंड डिटेल डिज़ाइन। इसमें क्या होगा, टेस्ट प्रोसीजर दैट स्टैंड्स आउट एज more sophisticated are flagged. These test procedures are further defined as part of detailed test design, right? अब मीन्स टेस्ट प्रोसीजर्स में क्या हम बाद इसके लिए हम जितना भी डिटेल डिज़ाइन मीन्स इसमें प्रोसीजर्स क्या कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि हम डिटेल लेवल पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये टेस्ट प्रोसीजर्स आगे की उसमें और भी चीज़ों को डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट अगर हम डिटेल डिज़ाइन की बात करते हैं, तो दोज टेस्ट प्रोसीजर्स फ्लैग्ड एज पार्ट ऑफ स्टेप 7 दैट इज डिटेल डिज़ाइन are designed in further detail within a detailed test design file or document. So this test procedure detailed design may consist of pseudocode algorithms, means इसमें क्या हो जाएगा, डिटेल डिज़ाइन में क्या, जब मैं अंदर और किसी चीज़ के लिए गहराई से डिज़ाइन में उतर रहे हैं तो उसमें एल्गोरिथम्स देखेंगे, स्टेप डेफिनेशन देखेंगे, उसकी pseudocode देखेंगे। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे टेस्ट डेटा मैपिंग। Test procedure matrix is defined to reflect test data requirements for each test procedures, ठीक है। तो हमने ये सब क्या देखा आपने कि इसमें हम कैसे ये टेस्ट प्रोसीजर की डिज़ाइन प्रोसेस होती है, उसके 8 स्टेप्स हो गए, एक तरह से हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। अब हम आते हैं टेस्ट डेवलपमेंट में। अब हमने क्या कर लिया, टेस्टिंग कर ली थी, डिज़ाइन कर ली थी, अब हम किस पे करेंगे, डेवलपमेंट में आएंगे, ठीक है। तो डेवलपमेंट में हम देखेंगे, ये स्टेबल में हमने क्या बताया है कि इसकी क्या क्या चीज़ें किस किस फेज में डेवलपमेंट हो रहा है, फिर उसके रिलेशनशिप्स कैसे हो रही है। लाइक अगर मॉड्यूल की बात करें तो फर्स्ट में हम एक यूनिट उसको देख रहे, उस डेवलपमेंट मॉड्यूल में क्या होगा, उस प्रोसेस को हमने उसमें क्या करेंगे, डिज़ाइन मॉड्यूल फ्रॉम जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती है उसको हम मॉड्यूल के फॉर्म में डिज़ाइन करेंगे। उसमें हम क्या करेंगे, जितनी सारी टेस्ट प्लानिंग है और टेस्ट एनवायरनमेंट सेटअप है, इन सब की टेस्ट प्रोसेस करेंगे। कोड मॉड्यूल की हम बात करते हैं तो इसमें क्या करेंगे, हम टेस्ट डिज़ाइन और डेवलप टेस्ट डेटा हम उसको क्रिएट करेंगे। डिबग मॉड्यूल में क्या करेंगे, राइट टेस्ट स्क्रिप्ट्स और रिकॉर्ड टेस्ट सिनेरियो यूजिंग मॉड्यूल। एंड यूनिट टेस्ट मॉड्यूल में क्या करेंगे, डिबग ऑटोमेटेड टेस्ट स्क्रिप्ट बाय रनिंग अगेंस्ट मॉड्यूल
use tools that support unit testing. अगर हम करेक्ट डिफेक्ट्स की बात करेंगे तो इस यूनिट मॉड्यूल डेवलपमेंट में मीन्स इसमें हो जाएगा आपका रीरन ऑटोमेटेड टेस्ट स्क्रिप्ट। मीन्स बार बार हम जो ऑटोमेटेड टेस्ट स्क्रिप्ट हमने बना रखी है तो उससे हम डिफेक्ट्स और पता लगाएंगे, उसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे टू रिग्रेशन टेस्ट एज डिफेक्ट्स आर करेक्टेड। एंड कंडक्ट परफॉर्मेंस टेस्टिंग में क्या हो जाएगा हमारा, वेरीफाई करेंगे सिस्टम को कि वो कितना स्केलेबल है और उस परफॉर्मेंस देखेंगे रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि वो कितना मीट कर रहा है उस रिक्वायरमेंट्स को। अगर हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं, अब नेक्स्ट फेज में क्या, इंटीग्रेशन में आ गए हम, ठीक है। तो इसमें क्या देखेंगे, बिल्ड सिस्टम एंड कनेक्टिंग मॉड्यूल्स। इसमें क्या है, पहले जितने भी मॉड्यूल्स अलग अलग हमने यूनिट में बनाए थे, जैसे बड़े प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो अलग अलग मॉड्यूल्स आ जाते हैं हमारे पास, फिर उनको बाद में इकट्ठा भी करना पड़ता है क्योंकि हम प्रोजेक्ट तो एक ही पे काम कर रहे हैं, एक ही सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, राइट। तो इसमें क्या करेंगे, कंबाइन यूनिट टेस्ट स्क्रिप्ट्स एंड ऐड न्यू स्क्रिप्ट्स। एंड इसके बाद हम क्या इसको डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे कि उसकी इंटर कनेक्टिविटी कैसे हुई है, उसमें हम कुछ सपोर्टिंग टूल्स जो ऑटोमेटेड टूल्स हो रहे होंगे वो यूज़ करेंगे, ठीक है। और फिर हम इसमें इंटीग्रेटेड टेस्ट कंडक्टिंग मॉड्यूल्स करेंगे और उनको ट्रबल रिपोर्ट्स इन सब का भी अपन देखेंगे। फिर करेक्ट डिफेक्ट्स एंड अपडेट डिफेक्ट स्टेटस। इसमें क्या करेंगे, रीरन ऑटोमेटेड टेस्ट स्क्रिप्ट एज पार्ट ऑफ रिग्रेशन टेस्ट एज डिफेक्ट्स आर करेक्टेड। इसमें जितने भी चीज़ें हमें डिफेक्ट आए थे इस फेज में हम उस चीज़ को करेक्ट करेंगे। नाउ कंटिन्यूड परफॉर्मेंस टेस्टिंग, फिर से हम परफॉर्मेंस टेस्टिंग को कंटिन्यू करेंगे। उसमें हम क्या करेंगे, वेरीफाइड दैट सिस्टम इज स्केलेबल, कि वो अपने जो एक मापदंड था उस पर खरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा है, ठीक है। अब हम उसके बाद देखें कौन से फेज़ में आ गए, हम सिस्टम टेस्ट के फेज़ में आ गए। इसमें क्या करेंगे, रिव्यू ट्रबल रिपोर्ट्स करेंगे, जिसमें कि क्या करेंगे, इंटीग्रेटेड ऑटोमेटेड टेस्ट स्क्रिप्ट इनटू सिस्टम लेवल्स टेस्ट प्रोसीजर्स, जहाँ पे जितनी सारी चीज़ें हमने अलग सी चीज़ें कर रखी होंगी, अलग प्रोसीजर्स कर रखे हैं, जो जो चीज़ मेरा मतलब यूज़ करके रखा होगा उन सब चीज़ों को रिव्यू करेंगे और उनका ट्रबल रिपोर्ट बनाएंगे कि कहाँ कहाँ पे कुछ दिक्कतें आई थी, उन सब चीज़ों की रिपोर्ट तैयार करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड सिस्टम टेस्ट। एंड इन दिस करेक्ट डिफेक्ट्स एंड अपडेट डिफेक्ट स्टेटस, उसके बाद हम इन सब चीज़ों को उसके डिफेक्ट स्टेटस को भी देखेंगे। नाउ कम टू द एक्सेप्टेंस टेस्ट। इसमें क्या करेंगे, रिव्यू इंसिडेंट रिपोर्ट्स देखेंगे, इसमें परफॉर्म सबसेट ऑफ सिस्टम टेस्ट एज पार्ट ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्ट। इसमें करेक्ट डिफेक्ट्स में क्या देखेंगे, रन ऑटोमेटेड टेस्ट स्क्रिप्ट एज पार्ट ऑफ रिग्रेशन टेस्ट एज डिफेक्ट्स आर करेक्टेड। तो ये सारी चीज़ें हमने क्या देखी अभी, अलग अलग डेवलपमेंट के टेस्ट रिलेशनशिप के बारे में हमने देखा है, किसके अंदर, डेवलपमेंट के अंदर में, ठीक है। तो ये हमारा आज का सेशन हुआ। तो दिस सेशन पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 जयति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। Hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in comment box. Then I will resolve your issue. Okay. So thank you so much.